reproductive health. Reproductive health, according to WHO, the state of, according to WHO, a state of physical, mental, social well-being is known as health. Physical, mental and social well-being is known as health. Or another thing is of disease. Disease, what is disease? Disease is the different word from the health. Health से disease एक अलग word होता है. Disease का मतलब होता है that is the when the function of body or body organs, function of body or body organs is disturbed or not proper function, or which interfere the normal functioning of other body parts, that is known as disease. अगर बॉडी के ऑर्गन या उसके कोई फंक्शन प्रॉपर नहीं होना है तो उसको डिजीज कर सकते हैं. डिजीज नॉर्मली 3 तरह की होती है. जेनेटिक डिजीज दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जस्ट लाइक हीमोफीलिया, Klinefelter syndromes. Second one is of infectious disease. Infectious disease, the type of disease that transfer from infectious person to healthy person. Third one is of lifestyle disease. Lifestyle disease due to lifestyle, just like obesity, that blood cholesterol, high blood pressure, ये disease जो होती है वो क्या होती है. तो अपने को अपनी मेन देखना है. सबसे पहले इसमें व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अकॉर्डिंग टू WHO again the total well-being. Reproductive health means total well-being of all aspect of reproduction. Total well-being of all aspect of reproduction, that is known as reproductive health, जिसमें physical, emotional, behavioral and social aspect हो सकते हैं related to reproduction, which is we study in the reproductive health. What is the reproductive health? Programs held in the reproductive programs held in the society. Reproductive health program. Reproductive health program क्या होता है? फर्स्ट है फैमिली प्लानिंग. एक तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है through this family planning program that people can reduce the size of family, that is the family planning. Another one is of RCH launched inside the India in 1977. What is the RCH? That is reproductive and child health care. Reproductive and child health care, that program was launched inside the India in 1977. सो ये दो प्रोग्राम है. इन्हीं प्रोग्राम से रिलेटेड सारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ होते हैं. अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है? दिस इज द प्रोग्राम एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम्स related to reproductive health. First problem is lack of awareness. Lack of awareness related to the reproductive system, reproductive parts, any other, and in number of myths. myths, बहुत सारी धारणाएं, गलत धारणाएं इंडियन सोसाइटी में है जिनको रिमूव करना. रिलेटेड टू सेक्स रिलेटेड गलत धारणाएं उनको रिमूव करना. इसी तरह से एसटीडीज, बहुत सारी रिप्रोडक्टिव सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, उनसे कैसे बचा जा सकता है, उनसे कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है. इट इज ऑल्सो प्रॉब्लम्स. द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन.
Day by day the population of the world along with India is increased. So how we reduce the population and illegally abortion, स्पेशली फीमेल चाइल्ड का अबॉर्शन किया जाता है, इलीगल अबॉर्शन किया जाता है, उनको बैन कैसे किया जाए, उनसे कैसे निपटा जा सके, ये एक अलग प्रॉब्लम है. एंड एक्वायर्ड इनफर्टिलिटी, एक्वायर्ड इनफर्टिलिटी आजकल क्या है, बहुत सारे गलत तरीके से काम करते हैं, बहुत सारे का खान पान सही नहीं है, लाइफस्टाइल सही नहीं है, उसकी वजह से कपल्स के अंदर फर्टिलिटी डिक्रीज होती जा रही है, जिसको अपन कह सकते हैं एक्वायर्ड इनफर्टिलिटी. उसकी प्रॉब्लम्स मेन हो रही है इन सबसे ज्यादा. तो उसको कैसे, उससे बाहर कैसे आ सके, दीज आर द प्रॉब्लम्स. lack of awareness, number of myths related to sex, and sex related disease, sexually transmitted disease, population explosion, illegal abortion and acquired infertility. These are the problems. तो ये प्रॉब्लम्स है किसके पास, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पास, और जितने भी प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं उनके थ्रू. अब इनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एम क्या है, क्या एम है उसके, और भी इन प्रॉब्लम्स के अलावा भी एम्स हो सकते हैं. उन एम्स में सबसे पहले इंश्योर द सेफ satisfying रिप्रोडक्टिव लाइफ. इंश्योर करना हर आदमी के लिए सेफ एंड सेटिस्फाइंग रिप्रोडक्टिव लाइफ. टू क्रिएट अवेयरनेस, to create awareness of various reproductive aspect or reproductive disease, to provide sex education, सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो उनको सेक्स रिलेटेड डिजीज के बारे में पता चलेगा, सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पता चलेगा. एंड टू एजुकेट फर्टाइल कपल्स, फर्टाइल कपल को एजुकेट करेंगे तो उनको पता चलेगा हाउ कैन वी find out the problems of the infertility, how can find out the different disease of prenatal disease, postnatal disease, how can we care the child or new young ones. So through educating the fertile couples we remove the different types of these things. And next one is of provide medical facilities, to the people or the population of. And STDs, ये भी एक एम है कि हाउ कैन वी रिमूव द STDs फ्रॉम द सोसाइटीज. One is the main aim is of what is the marriageable age of the particular person which is present in the society. कौन सी marriageable life होनी चाहिए. Manage the disorders, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उनको किस तरह से मैनेज किया जाए, उनको किस तरह से रिमूव किया जाए. ऑल दीज आर द डिफरेंट एम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. what is the these are the aims, and what is the step taken by the government to increase reproductive health. Step taken जो कि हैं उनमें amniocentesis is the banned by the India or also different countries. What is the amniocentesis? Amniotic fluid present अराउंड द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के चारों तरफ एक फ्लूइड होता है मेम्ब्रेन के अंदर, उसको एमनियोटिक फ्लूइड्स कहते हैं. थ्रू दैट एमनियोटिक फ्लूइड वी हैव टू फाइंड आउट
that the female sex or male sex present in the female mother womb. कौन उसका सेक्स क्या है, फीमेल है या मेल है? तो nowadays in India or in many other countries the female sex is destroyed. तो उसको बेन कर दिया गया, फीमेल पोइटिसाइड्स यानी उसको कह सकते हैं एमनियोसेंटेसिस को बेन कर दिया. इट इज द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट द सेक्स ऑफ द न्यू यंग वंस थ्रू द एमनियोटिक फ्रूट्स. इसको बेन कर दिया गया है. इसके अलावा सोसाइटी के अंदर बहुत सारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स रनिंग है. इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जिससे बेबी को, प्रेग्नेंट लेडी को बहुत सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम किए जाते हैं जिससे कि न्यू यंग वंस को और मदर्स को प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज. क्रिएट हेल्थ सेंटर्स, क्रिएट हेल्थ सेंटर. बहुत सारे हेल्थ सेंटर क्रिएट किया गया जो इनफर्टाइल कपल्स को वहां पर एजुकेट किया दी जाती है, उनकी डिजीज को डायग्नोसिस की जाती है जिससे कि उन इनफर्टिलिटी डिसऑर्डर को रिमूव किया जा सके. एंड दैट इज नेक्स्ट वन इज ऑफ एमटीपी. एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है? कभी कभी जो न्यू यंग वंस है या फीटस है उसको कोई डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, तो उस ऐसी कंडीशन में ऐसे बच्चे का जन्म लेना जरूरी नहीं है, तो उनको इस तरह से टर्मिनेट किया जाए. तो ये भी स्टेप टेकन किया गया, एमटीपी किया गया, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी. 1971 में इंडिया में इसको लीगलाइज्ड कर दिया गया. देन आता है कि कौन कौन से इंडिकेटर्स है जिससे हमें पता चल रहा है कि इंडिया में रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस डेवलप हो रही है या ये चीज़ें हो रही है. तो पता चल रहा है कि इंडिया में सेक्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है लोग डॉक्टर से शेयर करने लगे हैं और वो मैटर, सेक्स रिलेटेड मैटर डॉक्टर से बताने लगे हैं. प्लस फैमिली प्लानिंग, मेनी पीपल्स ऑप्ट द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स. फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स आप ऑप्ट कर रहे हैं जिससे कि पता चल रहा है दीज आर द इंडिकेटर्स इंप्रूव रिप्रोडक्टिव लाइफ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ. आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक, वो ये दीज आर द टेक्निक्स थ्रू विच इनफर्टाइल कपल्स विल बी फर्टाइल्स. तो वो इन टेक्निक्स को लोग यूटिलाइज कर रहे हैं जिससे इनफर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है और बहुत सारी न्यू मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है जिससे उनकी इनफर्टिलिटी डे बाय डे डिक्रीज हो रही. सो दिस इज द that indicators through which we can see that improve reproductive life or improve reproductive health is seen in the society. Population explosion. If we see in the last century, all around the world, development occur in the various field, due to which the quality of life is increased, and that's why the population of increases day by day. If we see what is the causes of increasing of population, first causes that is decreasing of MMR, maternal mortality rate. मदर्स डेथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई. एंशियंट टाइम में मदर्स की डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी, इट वाज मेनी मोर. दैट्स वाई मैक्सिमम न्यू यंग वंस एंड मदर्स आर going to death. That's why the population is increased. Next one is of control disease. प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी एपिडेमिक डिजीज जो है उनको कंट्रोल कर लिया है. जैसे अभी चल रही है कोरोना डिजीज, इसका वैक्सीन फाइंड आउट नहीं है, परंतु इसी तरह से एंशियंट टाइम में बहुत सारी डिजीज हो चुकी थी. जॉइंडिस है, डायरिया है, इनसे 10 लाख जो पर्सन इमीडिएट डेथ हो जाती थी. तो उसकी वजह से लोग पास आउट हो जाते थे, परंतु अब उन सभी डिजीज को कंट्रोल कर लिया गया है जिसकी वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ रही है. डिक्रीज इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी. इन्फेंट मॉर्टेलिटी, न्यू यंग वंस
जो है वो पहले उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था, प्रॉपर उनका फूड नहीं मिल पाता था, उस वजह से ये IMR भी ज़्यादा थी, वो भी डिक्रीज होगी। एंड नेक्स्ट वन इज ऑफ इम्यूनाइजेशन। वी सी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम run in different society that strong our immune system, due to which death rate is decreased, and due to decreasing on death rate population explosion is there, population explosion हो रहा है। What is the consequence of over population? इसके क्या इफेक्ट हैं? सबसे पहले स्पेस, लिमिटेड स्पेस है, लोगों के रहने की जगह कम होती जा रही है, स्पेस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। पहले जहाँ पर जो है यूनिट एरिया लोगों के लिए ज़्यादा जगह थी, अब वो कम होती जा रही। फूड सप्लाई धीरे धीरे, फूड मिल रहा है तो प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा, फूड सप्लाई की प्रॉब्लम आ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट डे बाय डे ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन द एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीज्ड, अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीज, लोग बेरोजगार रह रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, और एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है सभी जगह पर। गाँव के अंदर जहाँ पर जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सभी को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती है। और एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, इसकी वजह से पॉपुलेशन डेवलप होने की वजह से पॉल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है। हाउ कैन वी कंट्रोल द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? वी कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन विद द हेल्प ऑफ ओनली एंड ओनली एजुकेशन। प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, अगर वो उसको प्रॉपर एजुकेट किया जाएगा तो वो कंट्रोल कर सकता है। एज ऑफ मैरिज एज, पहले इंडिया में छोटे छोटे बच्चों की मैरिज हो जाती थी और उनको पता भी नहीं होता था क्या से क्या हो जाता। अगर मेरी एज की मैरिज फिक्स कर दी गई 21 ईयर और 18 ईयर, जिससे भी इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फैमिली प्लानिंग। फैमिली को प्लान करके चले, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कितने न्यू यंग वंस होने चाहिए, कितने मेंबर्स फैमिली में होने चाहिए, इसको प्लान करके चले तो फैमिली प्लानिंग के थ्रू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोका जा सकता है।